Guys, 1 more minute and we'll start. Hey Suhail. Hi. Yeah, Sanmita. Hi, Sorry, hi, just saw Amit. you. Sorry, I was late. That's No problem. Amit is on a tour. He's at Hyderabad. He's gone for a relative's marriage. I doubt he'll be able to join. okay. No problem. So let's start. We are starting a new topic today, so I thought maximum people would be good. Let me see. Okay, some of you do not have link. So guys, I hope first of all, sorry for the break. Wasn't keeping well at all. I'm still not well, but didn't want to continue this break for a long time. So you guys start forgetting things. I hope you guys did practice. Anyone has any issues on the topics which we have been covering till now? Yes, guys. Anyone? No. Okay. So let me quickly revise what we were doing initially. I mean, from the day one, exactly what we did. We read the basics and everything, definitions, theory, and then we started with Portal. We started with Portal. We created few resources, virtual machine, etc. And then it came to virtual machine. We clicked here on virtual machine, started with this left panel, which will appear now. This one I'm talking about. Here we cover this section, sorry, this section, which is overview, activity log, IAM. IAM is similar for all of the resources, uh, even for subscription. IAM हर जगह same ही होगा. Diagnose and problem, ये सब हम लोगों ने देखा. Then we went to networking. Then we went to networking. Under networking we saw NSGs वगैरह, ये सब हम लोगों ने देखा. Networking में we covered many topics. Cider वगैरह हम सब लोग पहले ही कवर कर चुके थे, जो नेटवर्किंग का बेसिक है, right? Post that we cover this VNet pairing, VNet pairing over VPN, VNet pairing bit using gateway subnet, VNet pairing in Azure to Azure, Azure to a different one, Azure to AWS. I haven't shown it to you guys a practical that might confuse you guys. उसमें AWS का भी बहुत सारा ये आ जाता है, इसलिए but you don't even have to worry about it. You need to be focused on the Azure parts. Azure वाले पोर्टल पे जो जो स्टेप्स होते हैं, you be assured about that. I'll make sure कि हम लोग एक प्रैक्टिकल जरूर करें, जहाँ पे मैं AWS या GCP दोनों में से किसी एक को Azure से कनेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा that how these two machines can talk to each other. So I will definitely do that.
एंड सिमिलरली वैसा ही होगा व्हेन इट कम्स टू ऑन प्रीमाइसेस टू अज्योर, AWS हो या ऑन प्रीमाइसेस हो, ऑलमोस्ट चीजें सेम ही होगी, ठीक। एंड देन वी सॉ द ऑल ऑफ दीज वर पॉइंट टू सॉरी साइट टू साइट कनेक्टिविटी, मतलब दो साइट्स जहां पर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी एक पूरा अज्योर का साइट है, वहां पर भी एक पूरा अज्योर का साइट है, यहाँ पर भी एक अज्योर का साइट है, वहाँ AWS का साइट है, अज्योर का साइट है, वहां पर ऑन प्रीमाइसेस साइट, साइट एज एन पूरा डेटा सेंटर है या कुछ है, एंड यूजर कोई नहीं है। So these are site to site. All of what we discussed till now site to site था, except one जिसके आगे हमने एक specifically point to site जो है उसको डिस्कस किया, which was our last practical in नेटवर्किंग सेक्शन। तो पॉइंट टू साइट में क्या था, हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह इंस्टॉल करने थे, वो लंबा चौड़ा सा एक प्रैक्टिकल था। वी डिड इट थोड़ा सा क्विकली, but ultimately we did it. So I hope उसके बाद few of you connected with me and you guys were able to do it successfully. Not sure about the others. uh, I hope you guys practiced. If not, video is still there, please go ahead and practice, and if you get stuck, please ping in the group, anyone will help. Here we have some people जिन्होंने already कर रखा है उसको successfully, नहीं, if they are able to answer that is fine, if not I'll do that. So this is how we completed our networking section. VNet वगैरह वो सब हम already cover कर चुके थे। So networking में कुछ अगर बाकी है अभी तो sorry, so networking में अगर कुछ बाकी है, so this वर्चुअल वैन, ये बहुत ज्यादा ह्यूज कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट श्योर इफ विल कवर इट और नॉट। एडमिन वाले पार्ट में जल्दी आता भी नहीं है, कोर आर्किटेक्चर का टॉपिक है, विल कीप इट फॉर लेटर। इसके अलावा है हब एंड स्पोक मॉडल, दिस इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ एडमिन वाला कोर्स एंड वी आर गोइंग टू डू दिस। सो इसमें एक बाकी है अभी हम लोगों का हब एंड स्पोक, और प्रैक्टिकल मुझको आपको एक बताना है विच इज AWS एंड Azure की कनेक्टिविटी। अदर देन दैट NSG वगैरह हम लोगों ने कर लिया, NSG रूल्स, एप्लीकेशन गेटवे, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। DDoS इट्स नॉट दैट, इट इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन कुछ करके देखने वाली चीज खास नहीं, मतलब समझ नहीं पाओगे आप इसको। इसको डेफिनेशन पढ़ लो DDoS के, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी होगा। DDoS, दिस शुड बी इनफ interview point of view से। route table, yes it is a good topic but not exactly covering here, इसको बाद में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। So this is all about networking. Today we are starting storage. So again, before I move to storage, do you guys have any questions, any doubt, anything before I move to storage? Yes guys, anyone? अब जितना मैंने पूरा 1-10 मिनट में रिवाइज कर लिया, जो कुछ हम लोगों ने किया था, इसमें किसी को भी कोई डाउट है? Yes, no, maybe. नो सॉल्व है अभी तक। Bastion we have not covered yet. Required as in? I mean, do we have to learn that? Yes, we'll definitely learn that. Okay. Bastion isn't exactly a part of networking. It is a part of HA, I would say. But we'll do that. Bastion के बिना नहीं होने वाला. Don't worry, we are not going to leave Bastion. Bastion will definitely do. We will do that when we do load balancing. Okay. So networking यहाँ पर हो गया. Yeah, connect. Do you guys see connect? यहाँ पर हम लोग Bastion वगैरह कर लेंगे. But before we go here, I want to cover storage. I know we decided we'll go in this manner and this is what we are going to do. इसके बाद हम connect पे ही जाने वाले हैं. We'll do that, but before that I want to start storage क्योंकि storage बहुत ज़्यादा huge concept है. आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू हो या एग्जाम हो, उसमें से बहुत कुछ आता है। विदाउट स्टोरेज कुछ बनेगा ही नहीं, राइट। तो स्टोरेज अगर मतलब अभी कोई 15-20 दिन में इंटरव्यू देना शुरू भी करना चाहता है और वो स्टोरेज के बारे में पूरा ब्लैंक है, तो वो वैसे ही हकाला जाएगा। बैशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता है, दैट इज फाइन। एक छोटा सा कंपोनेंट है बैशन, एक छोटी सी सर्विस है। स्टोरेज पूरा का पूरा एक सेगमेंट है। सो हेंस आई वांट टू स्टार्ट स्टोरेज फर्स्ट। Sorry guys, yeah. So could anyone quickly tell me what do you understand by storage? Forget Azure, forget on premises, everything, just what do you understand by storage?
place where you store your content, for example. Sorry. Storage is kind of a place where you store your content. Okay. Yeah. It's a Data. space where you can store data. Yes, that is also correct. What else, guys? Anyone who does not know what is storage? Don't hesitate, guys. Anyone who doesn't understand what storage is, let me know. I'll explain it before we go to Azure wala storage concept. Mein, I want you to understand storage first. Okay, so let's start here. First thing, the virtual machine which we have been working on, any virtual machine. Okay. इसमें जो disk लगा हुआ है एक, this is also a part of storage, but this is a small part of storage. This disk, it is not storage at all. Complete storage concept नहीं है. ठीक है. Storage पूरी जो सर्विस है, पूरा जो सेगमेंट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये डिस्क, और वर्चुअल मशीन के साथ जो ये डिस्क ये होती है, अटैच होती है, ये उस स्टोरेज का एक छोटा सा हिस्सा है. विल सी दैट वो कहाँ पर फिट होता है, और लेट मी क्विकली शो इट टू यू. इस पे हम वापस आएंगे पढ़ने में, बट एज ऑफ नाउ आई विल जस्ट शो इट टू यू. So here if you go, these are the types and details of storage. We'll read them one by one. Just give me a minute, guys. Trying to search. Here it is. So out of these many categories which we have in storage, which we are going to read now one by one, I have already given a heads up to you guys that this is a theory lecture today, session today. So one of them is page blob. There are many. There are blob types, blob, append blob, etc. बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है. One of them is page blob, and the page blob is something which are virtual disk, virtual machines disk that use. So that belongs here. इसका मतलब ये है कि वो पूरा स्टोरेज नहीं है, ठीक है. स्टोरेज का इतना बड़ा सेगमेंट है, इसका एक छोटा सा जो पार्ट है, यहाँ पर कहीं पर हमारे वर्चुअल मशीन की डिस्क फिट होती है. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So let's start now. Storage is something, normally storage is presented like this. No, sorry, not this one. I don't know if I'll get that shape here or not. एक cylindric type का shape होता है, storage को उस तरह से represent करते हैं हमेशा. That is what storage is. Like this. ये ऐसा जो है ना, इसको storage को हमेशा इस तरह से present करते हैं, इस cylindric shape में. So storage is where you want to save your data. Now there are multiple types of data. There are multiple ways to save them. You can save them online. You can save data from backup. You can save data from some logs. You can save data from some life system. There are plenty of ways. हम थोड़ा उसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग उसको. बट किसी भी तरह का कहीं पर भी डेटा कहीं पर सेव हो रहा है, so that is our storage. Not necessary कि वो डिस्क हो सकता है. ओल्ड टाइम में तो टेप, इफ यू गाइस रिमेम्बर, टेप्स होते थे, वो ब्राउन कलर के टेप्स, जैसे कैसेट्स वगैरह में जो टेप होता है ब्राउन, उस पर भी डेटा जो है स्टोर किया जाता है. सो एनी थिंग्स, हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर एक सीडी होती है जो घूमते रहती है, स्पिन होती है. दैट इज ऑल्सो योर स्टोरेज. न्यू टाइप का जो डिवाइस है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वी हैव बीन सीइंग HDD एंड SDD. दो चीजों को हम देख रहे हैं काफी टाइम से. तो SDD में सारे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं. दैट इज ऑल्सो योर स्टोरेज. सो स्टोरेज किसी भी टाइप का हो, कोई भी हो, टाइप्स वगैरह सब कुछ अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट इज योर स्टोरेज. आपके फोन में जो है इंटरनल स्टोरेज, वो भी स्टोरेज है. जो मेमोरी कार्ड लग रहा है वो भी स्टोरेज है. क्लाउड पे व्हेन यू आर सेविंग समथिंग, फॉर यू इट इज अगेन स्टोरेज.
क्लाउड भी क्या है, as I always repeat that जो cloud is nothing but someone else's computer, तो क्लाउड में भी क्या है, आपके लिए क्लाउड है। If you guys are using iPhone, it's iCloud, Android यूज कर रहे हो तो Android वाले majority of the time Google Drive यूज करते हैं, 15 GB जो फ्री वाला मिल जाता है वो। तो बेट गूगल ड्राइव, बेट iCloud, अल्टीमेटली वो लोगों ने भी क्या कर रखा है, कहीं ना कहीं कोई हार्ड डिस्क ही सेव कर रखी है। दैट इज व्हाट अ स्टोरेज इज। सो इफ आई शो यू द स्टोरेज के जो बड़े यूनिट्स कैसे दिखते हैं डेटा सेंटर में जो है, जैसा हम लोगों ने पूरा डेटा सेंटर का डिटेल देखा था कि रैक्स लगे होते हैं, उसके ऊपर सर्वर्स होते हैं, ये सब होता है। आई होप यू गाइस रिमेम्बर। Yeah. उसी तरह से सी स्टोरेज एक ये तरीका हो सकता है कि इस तरह के हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, मे बी एक टीबी के कितने 50 के 100 टीबी का ये आपको यहाँ पे पूरा स्टोरेज मिल गया। द डिफरेंस हियर इज कि ये पूरा का पूरा 100 टीबी एक साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है कहीं पर, और इसमें से फिर वर्चुअली सबको छोटा मोटा डिवाइड किया जा सकता है, सेम जो हम वर्चुअलाइजेशन मशीन का देखते हैं उस तरह से। देन इसका पूरा का पूरा बैकअप लिया जा सकता है। सो दिस इज वन वे स्टोरेज। ये भी एक स्टोरेज है दूसरे तरीके का। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। फिलहाल हम सिर्फ लुक्स की बात करें, टेक्निकल डिटेल्स उसकी डिफरेंशिएशन ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट पिक्चर्स देख के नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। जस्ट टॉकिंग अबाउट द लुक्स, और आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डेटा सेंटर में वो फिट कहाँ पर होता है। तो जब भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे तो वो रियलाइज होना चाहिए। ये सारे जो केबल्स वगैरह जा रहे हैं सर्वर से, कोई ना कोई केबल वो वहां पर भी जुड़े होंगे, स्टोरेज डिवाइसेस पे भी। स्टोरेज डिवाइस में भी कनेक्टर्स होते हैं एंड दे गेट कनेक्टेड यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल। एक टाइप है केबल का फाइबर ऑप्टिक चैनल्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं। आई थिंक दिस डायग्राम विल गिव यू अ बेटर पिक्चर। Can you see this image, guys? It's not that clear, I understand, but I'm not able to open the main page here. There's some issue with that. Are you able to see this? It's okay if you're not able to read it, but are you able to see this? Yes. Yes. थोड़ा बहुत. So these are our computers. इसमें कुछ switch है, कुछ router है, कुछ XYZ ये है, और these are our storage devices. I'm not sure if you can read it. It is on my screen. I can read it barely, but I know it is written storage devices. So these are our storage devices. With the help of cable and everything, ये सब इससे connected है. So what does it mean कि ये computers के ऊपर कुछ नहीं save हो रहा है. अल्टीमेटली डेटा सारा का सारा आपका यहाँ पर सेव हो रहा है। सो सेम अगर आप क्लाइंट भी हो और लैपटॉप भी यूज कर रहे हो, सो नथिंग गेट्स सेव्ड ऑन योर लैपटॉप। क्यों ऐसा? क्योंकि इट कुड एनीथिंग कुड हैपन टू योर कंप्यूटर। लैपटॉप वगैरह लेकर आप घूम रहे हो, उसको कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, गुम सकता है, बारिश में भीग सकता है। कंपनीज दे डू नॉट केयर अबाउट मनी, या इसके उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनको कि एक लैपटॉप लाख रुपए का ये हो गया, इंश्योर होते हैं वैसे भी। बट उसके अंदर इफ दे स्टार्ट कीपिंग डेटा, तो वो बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज हो जाएगी। डेटा चला गया, चोरी होने पे, लैपटॉप चोरी होने पे डजंट मैटर, इंश्योरेंस में उनको वैसे ही मिल जाएगा। बट डेटा चोरी हो जाएगा तो उनके क्लाइंट्स पैनिक करेंगे बहुत। आई मीन डेटा इज बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज है उस एक पर्टिकुलर लैपटॉप से। हेंस व्हाट दे डू, इस तरह का सेटअप होता है कि स्टोरेज कहीं और होगा, बाकी डिवाइसेस ये सब कहीं पर और होंगे। कनेक्टिविटी केबल से होगी, वायरलेस होगी, किसी भी तरह की हो सकती है। सो दीज आर स्टोरेज। अब यहाँ पर स्टोरेज है, ठीक है, ये कहीं किसी सिक्योर जगह रखे, कोई ऐसे डेटा सेंटर में, ऐसे डेटा सेंटर के रैक पे। बट हम लोग I texted you guys to read about zones and everything. I hope you revised it a bit. So my question was here कि हमारे मशीन्स भी तो डेटा सेंटर वगैरह में होते हैं, राइट? स्टिल हम लोगों ने ये सब क्यों पढ़ा, अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी सेट वगैरह क्यों पढ़ा? How it helps, availability zone and availability zone set, how it helps, who can explain? Forget about the storage, keep the storage aside for a minute. Answer me that question, that why do we have availability zone and availability set? Yes, high For availability disaster By security failure, and high डेटा सेंटर availability. फेलियर या फिर कुछ अगर इशू होता है तो exactly ट्रैक वाइज वगैरह। right. So you all of you agree that कि अगर आपका स्टोरेज यहाँ पर भी है, that does not mean, इसका मतलब ये नहीं कि 100% सिक्योर हो गया, राइट?
यहाँ की सिक्योरिटी तो हमने कवर कर ली कि चलो लैपटॉप वगैरह चोरी होगा तो ठीक है, कोई इशू नहीं, डेटा तो मेरा यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। बट इज इट मीन ये इंटैक्ट है एग्जैक्टली इसका किसी के माइंड में ऐसा पिक्चर तो नहीं है राइट कि डेटा सेंटर्स पूरे के पूरा इंटैक्ट है कि इफ समथिंग इज देयर इन डेटा सेंटर कुछ हो ही नहीं सकता राइट। इफ दैट वुड हैव बीन द केस हम लोग अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी से पढ़ते ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि डेटा सेंटर में भी चांसेस है दैट ये डेटा सेंटर डाउन हो सकता है, यहाँ पे नेटवर्किंग इशू हो सकता है, यहाँ पे पावर फेलियर हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो वर्चुअल मशीन्स के लिए जिस तरह से हमारे पास रेडंडेंसी है, इजंट इट ऑब्वियस कि हम लोगों को स्टोरेज के लिए भी रेडंडेंसी चाहिए होगी, Yes. राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज। यहाँ पर जो है ये जो हम देख रहे हैं पूरा पेज, ये redundancy की बात कर रहा है। आई मीन बिफोर आई स्टार्ट हियर इन क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड के इसके लिए क्यों redundancy चाहिए हम लोगों को, हेंस आई हैड टू एक्सप्लेन दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस कि डेटा क्या है, स्टोरेज क्या है, किस तरह से है। Yes. सॉरी। एंड नाउ यू नो कि redundancy क्यों चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि हाँ इट इज वेरी सिक्योर, इट इज वेरी हाईली सिक्योर इन डेटा सेंटर, दैट डज नॉट मीन कि डेटा सेंटर में कभी कुछ होता ही नहीं है। डेटा सेंटर भी डाउन होते हैं, पूरा का पूरा रीजन भी डाउन हो सकता है, इट कुड हैपन। और अगर बहुत ही ज्यादा क्रूशल डेटा है, पेशेंट्स है जिनके हेल्थ का डेटा है, बैंकिंग डेटा है, कोई गवर्नमेंट का डेटा है, कोई ऐसा डेटा है कि जहाँ पे पैसे से ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर वी विल नॉट सी कि ठीक है एक डेटा सेंटर में पड़ा रहने दो, कुछ हो गया तो चलेगा, नहीं, दैट इज नॉट द केस। यहाँ पर हम लोगों को वी विल रिक्वायर बैकअप, वी विल रिक्वायर ऑल दीज डिटेल्स, जहाँ पर रेप्लिकेशन हो, बैकअप हो, ये सब चाहिए होगा हम लोगों को स्टोरेज के लिए। सो दिस इज व्हाट स्टोरेज इज एंड दिस इज व्हाई वी रिक्वायर्ड स्टोरेज का बैकअप एंड रेप्लिकेशन वगैरह ये सब, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये सिर्फ हुआ एक ओवरव्यू हुआ एक आपका स्टोरेज का। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टोरेज इन Azure। अब तक जितना मैंने ये बताया, इट हैज नथिंग टू डू विद Azure, be it AWS, be it GCP, be it your on premises, ये सारे कॉन्सेप्ट सेम होने वाले हैं। अगर ऑन प्रेमाइसेस में है तो भी कोई डायरेक्टली सर्वर से अटैच स्टोरेज यूज नहीं करता है, हालांकि सर्वर में एक डिस्क आती है। व्हाई डू वी यूज दैट डिस्क? एक हार्ड डिस्क जो है सर्वर में होती है, व्हाई आर वी यूजिंग दैट? यस गाइस। Operating system. Yes, operating system here, and if you see with this अपना लिखा हुआ भी OS and it doesn't mean कि सर्वर केपेबल नहीं होता है दूसरी और डिस्क, सर्वर में कैपेबिलिटी काफी होती है सर्वर हार्डवेयर में कि आप 10-12 डिस्क और लगा लो और उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हो, बट यू विल नेवर डू दैट। क्यों नहीं करोगे? Before we start reading, let me tell you that also why you will not do it. Let's say this is your server, these are your 3 servers. Can someone quickly explain me availability zone and availability set? One person each. Availability zone को एक बता दो, availability set को एक बता दो। Yeah, availability zone is like where it has 2 or more data centers. That's called an availability zone. Okay, but how it helps me? A detailed explanation, please. What is availability zone? How is it going to help me? What does it do? I mean, it helps in failure as well as disaster recovery, and also for high availability. Okay, anyone else? Same concept. Availability zone means कि like example, if you have 4 virtual machines, so you divide them in different data centers. So if one goes down, so you still have 3, remaining. Right. Like that to get a high availability of that particular server. Right. Both are correct. Fine. Okay. So right, both answers are correct, guys. So let's say that this is availability set or availability zone. Anything. Let's take availability zone. This is my server 1, which is in zone 1. Zone 2. Hence, guys, I asked you to read availability set and availability zone, right?
Whoever is not getting this, please go that video once. So these are the 3 servers. I am running one application on this. On these 3 servers पे एक ही application run कर रहा हूँ. But now let's say that अगर मैं इन्हीं का स्टोरेज यूज करता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर जो हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, let's say that this server has 5 hard disk. और 4, that's fine. और यहाँ पर भी इतने हैं. So where will I save my data? If I save on one server and what if that particular server goes down, तो मेरा high availability चलेगा कैसे? Either what I'll have to do कि मैं इसको यहाँ replicate करूँ, इसको यहाँ replicate करूँ. मतलब एक डेटा के लिए what am I doing here? Availability set HF feature. Yes. Fine. तो अगर मैं पूरा डेटा सर्वर 1 पे सेव करता हूँ और सर्वर 1 ही डाउन हो जाता है तो देयर इज नो हाई अवेलेबिलिटी, मेरा डेटा चला गया. ठीक है, एप्लीकेशन में भी आप यहाँ से होगी, अमेजोन का पेज दिख रहा है, लेकिन मैंने जो ऐड किए थे कार्ट में 28 ऑर्डर वो दिख नहीं रहा है, राइट? सो दैट डजंट हेल्प मी अनलेस आई रेप्लिकेट दिस, या इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर. और अगर मैं इसको रेप्लिकेट करने लग जाऊँ तो एक डेटा के लिए मैंने अननेसेसरी 3 जगह चीजें ऑक्यूपाई कर ली. मतलब एक डेटा जो मेरा पूरा 1 TB में आता था, मुझको 3 TB का कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, राइट? So hence what I do to avoid this situation, what will I do कि मैं इन स्टोरेज को यूटिलाइज ही नहीं करूंगा. ये हार्ड डिस्क मुझको सर्वर की नहीं चाहिए. I'll just remove them. I do not want them. Hence और better than that what will I do कि ठीक है मैं इसमें एक OS हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूँ ना, उसी OS हार्ड डिस्क में अपना एप्लीकेशन भी चला लूंगा मैं. मतलब वेबसाइट का जो पेज है, वेबसाइट पेज बहुत छोटा होता है, 4, 5, 10 MB से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 12, 15, 20 MB से ज्यादा नहीं. इतनी जगह आराम से होती है आपके सी ड्राइव वाले इसमें. तो यहाँ पर मैं वो वेब पेज चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि तीनों वेब पेज सेम दिखे. एंड इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है समहाउ. हाउ टू डू दैट वो सब हम आराम से देखेंगे बाद में, ठीक है. इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है और ये तीनों कनेक्टेड है स्टोरेज से. सो एनी डेटा और एनीथिंग गोस, वो चाहे यहाँ पर कोई कुछ करे, चाहे यहाँ पर कोई कुछ करे, यहाँ पर कुछ करे, डेटाबेस एक ही है, मेरा डेटाबेस यहीं पर एक ही है. तो लेट्स से दैट यूजर 1 वाज डूइंग समथिंग, यहाँ पर उसने कार्ट में 28 आइटम्स ऐड कर लिए, वो डेटा मेरा सेव हो गया यहाँ पर इस स्टोरेज में, एंड सडनली ये सर्वर डाउन हो गया. यूजर को पता भी नहीं चलेगा, उसको सर्विसेज मिलने लग जाएगी सर्वर 2 से. बट इसका जो डेटा था, जो 28 आइटम्स इसने ऐड किए थे, नाउ आर दे गोइंग एनीवेयर? दिस सर्वर इज डाउन नाउ एंड दैट यूजर हैज शिफ्टेड टू दिस वन. डू यू थिंक उसके जो सर्वर्स, उसके जो आइटम्स एडेड थे स्टोरेज में, दे आर गॉन और दे आर स्टिल देयर? Still there भाई, storage एक ही है ना. स्टिल देयर. व्हाई? बिकॉज़ स्टोरेज यहाँ पर एक ही है. तो समझ में आया कि व्हाई डू वी यूज स्टोरेज इस तरह से अलग से कि इन लोकल हार्ड डिस्क को यूज क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, यहाँ पर फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा. जैसे इस सर्वर का अगर एक फैन छोटा सा फेल हो जाता है ना, बहुत छोटी चीज है फैन. आई मीन अगर आप इतने लाखों का सर्वर खरीदते हो तो वेंडर लाइफ टाइम की गारंटी देता है आपको. फैन की फैन चला जाता तो उसका इंजीनियर आके फ्री में चेंज करके जाता, चार्ज भी नहीं होता है आप लोगों को. बट इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं है कि उनका इंजीनियर खड़ा रहता वहीं पर. द मोमेंट द फैन हैज गॉन, आप लोगों को ये आएगा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को ईमेल जाएगा, वो चेक करेंगे, वो टिकट रेस करेंगे. डेल अगर वेंडर है तो वो वहां पर जाएगा. मिनिमम से फास्टेस्ट सर्विस भी 4 घंटे की होती है, उससे ज्यादा फास्ट कोई नहीं दे पाएगा, राइट? तो you will have to uh, call the vendor will come replace the fan. 4 hours के लिए आपकी सर्विस डाउन हो जाएगी एप्लीकेशन, which is not affordable. Hence you're keeping your data on a separate device, on storage device. और storage device, और यहाँ से अगर आप इन तीनों को replicate कर भी रहे हो तो understand one thing, replication is a different thing and a backup is a different thing. ठीक है, रेप्लिकेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर 28 ऑर्डर हुए तो यहाँ पर भी 28 ऑर्डर लिखे गए, यहाँ पर भी 28 ऑर्डर लिखे गए, यहाँ पर 27 ऑर्डर हो गए, यहाँ पर भी 27 ऑर्डर चले गए, यहाँ पर भी 27 ही हो गए. मतलब whatever happens at this data वो यहाँ पर होना चाहिए. इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिकेट करेगा तभी ये काम में आएगा. अगर आई वांट टू यूज लोकल डिस्क, आर यू गेटिंग इट गाइस? Yeah. Okay, so
what if I tell you that इस वाले डेटा में एक वायरस आ गया, so do you think वायरस इसमें और इसमें भी आ जाएगा if when I'm replicating? Yes guys, yes, no baby. Possible है. Yes. Yes, definitely आएगा. It is a replication. It is not a backup. It is a replication. Guys, 1 minute. Sorry. Right. Yes, it is definitely coming there. So to avoid that हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए बैकअप भी रखना चाहिए होगा. बैकअप कैसे होता है कि कल रात में मैंने इसका 11 बजे बैकअप ले लिया, तो वहां पर वो कट डाउन हो गया, और 11 बजे के बाद इसमें सुबह 11 बजे अगर कोई ये आया है, रात में 11 बजे मैंने बैकअप ले लिया, ठीक है, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे इसमें वायरस आया है, तो कुछ डेटा का लॉस होगा मेरा, बट कल के रात के 11 बजे तक का डेटा मेरे पास इंटैक्ट पड़ा हुआ है, बिकॉज मैंने उसको सेपरेटली बैकअप लिया था. रेप्लिकेशन इज समथिंग replication is something replication is something where you replicate data continuously. अगर हम अब मुझको बैकअप लेना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझको ये तीनों में से किसी का बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर तीनों का भी बैकअप लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन के रेप्लिकेशन में कितना ही हो रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता रहता है. हेंस इट इज ऑलवेज बेटर आइडिया इन लाइव एनवायरनमेंट में यूज होता है दैट यू यूज अ सेपरेट स्टोरेज. इसका बैकअप लेना इट इज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस है, इट इज मेंट टू बी बैकअप, और बहुत ही इजी तरीके से प्लेंटी ऑफ वेज आते हैं, तो मैं इसका बैकअप आराम से ले सकता हूँ. सारा डेटा यहाँ पर आ गया, किसी तरह का बैकअप वगैरह मैंने सेट कर रखा है कि हाँ इसका बैकअप हर दिन में 2 बार होना चाहिए, दिन में 1 बार होना चाहिए, रात में 12 बजे होना चाहिए, जो जो भी होना चाहिए, इसका मैं बैकअप भी इजीली कर सकता हूँ. इसीलिए विल ऑलवेज यूज दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरेज. इज इट क्लियर गाइस टिल हियर? Yes. Yes. Yes guys, all of you? Akib bhai, is it clear? Ashar, is it clear to you? Yeah. Yes, well, yeah. Jafar bhai? What about others guys? Anyone who did not get it can quickly just ping me and I will repeat it if you want. Sure. Acha, for that, no, that's fine. We just completed the concept and these sessions are recorded, तो वो आप देख लोगे, वैसे ही समझ में आ जाएगा. अंडरस्टैंडिंग में इशू है तो बताओ, then I'll explain it. Miss वाला part, don't worry. The recording is there. If you missed it, don't worry. Recording is there. Watch it. If you don't understand it, then let me know. So then I will explain it. Okay. So I hope it's clear to everyone. Yes, and who joined late, who missed it, don't worry, guys. Watch the video once. You'll understand. If you don't understand, then let me know. कल भी क्यों ना हो, we'll repeat it. Don't worry. ऐसा नहीं कि repeat नहीं कर सकते हैं. But at least watch it once. Okay, so this is what storage is. Now let's start reading storage on Azure. So for Azure, we have before we start reading theory, we have only 1 minute. तो मैं थोड़ा बहुत storage का look बता देता हूँ इस पे, and then we'll start reading theory. Storage पे जाना है आपको, तो you just have to click storage, and storage account you'll find here. Storage account classic. I told you guys we are not dealing with any of the classic resources. बहुत old ये है, legacy वाला अभी कोई use नहीं करता है.
मतलब जितना भी आप एक्सपीरियंस वगैरह बताने वाले हो, ऑल ऑफ यू जितने को भी रिज्यूम मैंने देखे, आई एम श्योर नन ऑफ यू विल हैव टू टेल कि आपने क्लासिक मॉडल पे काम किया है। क्लासिक मॉडल थोड़ा अलग था, यू डोंट हैव टू वरी। मतलब अज़ूर का न्यू मॉडल पे आके भी कम बहुत टाइम हो गया, 4.5-5 साल हो चुके हैं। सो डू नॉट एवर गो फॉर क्लासिक। काफी सारे रिसोर्स में क्लासिक आपको दिखेगा, वेरेवर यू टाइप समथिंग यू विल सी ऐसे और एक क्लासिक वाला, सो यू नेवर गो फॉर क्लासिक। सो स्टोरेज अकाउंट, नॉर्मल स्टोरेज अकाउंट पे यहाँ पर आते हैं हम लोग। दिस इज वन आई हैव क्रिएटेड, हेंस वी विल नॉट लुक एट दिस। इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू यू कैन क्लिक हियर, और इसी तरह से एक स्टोरेज अकाउंट बनाया जा सकता है। पर बिफोर वी डू, I'll have to explain a few things to you. Now it's less than 1 minute left. Let me stop this session and we'll start. First, we'll cover theory and then we'll come back to this portal to create one. Not sure if this will be done today or not. Storage काफी लंबा topic है, काफी दिन चलने वाला है। So unless you guys have any questions, I'm stopping the session and starting the new one using the same link. Okay guys, I'll stop and I'm starting immediately without any break. Same link we are using.